Hello students, I welcome you all to today's session. I hope all of you are doing good. So today's topic is Mumbai. Learning topics. Mumbai, the capital of Maharashtra. Location, climate, important offices, famous buildings and places, industries. Mumbai, the capital of Maharashtra. Mumbai is the capital of Maharashtra. It is the most important metropolitan city and business center of India. It is also a major seaport on the west coast of India, facing the Arabian Sea. As it is the state capital, all the offices of the Maharashtra government are located here. The governor, the chief minister, other ministers and government officials live here. Mumbai, जो कि महाराष्ट्र की कैपिटल है, सी पोर्ट भी है ये हमारे वेस्टर्न साइड का, साथ ही साथ अरेबियन सी को ये फेस कर रहा है। और क्योंकि ये एक स्टेट कैपिटल है तो गवर्नमेंट के जितने भी मेन ऑफिसेज हैं, जैसे कि चीफ मिनिस्टर का ऑफिस हो गया, गवर्नर का ऑफिस हो गया, वो सारे आपको मुंबई में ही देखने को मिलेंगे। Knowledge Corner. In British India, Bombay was a presidency which included the states of Gujarat and Maharashtra. Even in independent India, it was so. In 1960, Gujarat and Maharashtra became separate states. Bombay became the capital of Maharashtra. तो पहले के टाइम पे, जिस टाइम पे ब्रिटिश राज था, उस टाइम पे मुंबई एक प्रेसिडेंसी थी, बॉम्बे प्रेसिडेंसी, जिसमें मुंबई और गुजरात दोनों थे। इंडिपेंडेंट इंडिया तक भी गुजरात और मुंबई महाराष्ट्र यानी कि एक ही पार्ट था, लेकिन कुछ टाइम के बाद जैसे कि 1960 में बॉम्बे और गुजरात अलग हो गया और बॉम्बे बन गया महाराष्ट्र का कैपिटल। Historical background. Earlier, Mumbai was a group of 7 islands, namely Mahim, Worli, Parel, Mazagaon, Bombay, Little Colaba and Colaba. तो पहले जो मुंबई था वो 7 आइलैंड्स का, 7 छोटे छोटे आइलैंड्स का एक ग्रुप था, जिसके नाम आपको यहाँ पे दे रखे हैं, जिसमें आपका माहिम, वर्ली, परेल, माजागांव, बॉम्बे, लिटिल कोलाबा और कोलाबा पार्ट था। These islands were under the Portuguese control, but in 1661 these came under the control of the British. तो पहले ये पोर्टुगीज कंट्रोल में थे 1661 में, उसके बाद ये ब्रिटिश कंट्रोल में आ गए थे। In 1947, Bombay was declared a state with its capital of Bombay. Later on, it was divided into Maharashtra and Gujarat. 1947 तक जो बॉम्बे था, बॉम्बे और गुजरात एक ही साथ महाराष्ट्र का ही पार्ट था, लेकिन 1960 में गुजरात को बॉम्बे या महाराष्ट्र से अलग कर दिया गया। Location. It is situated on the west coast of India along the Arabian Sea. People from different parts of our country live here. A large number of people in Mumbai speak Marathi. तो ये आपके जितने भी वेस्ट कोस्ट हैं उस साइड पड़ता है, अरेबियन सी इसके पास है। अलग अलग ऑफिसेज यहाँ पे इंपॉर्टेंट आपको देखने को मिलेंगे। ऑल अराउंड द कंट्री यहाँ पे लोग रहते हैं और यहाँ के लोग टिपिकली बोलते हैं मराठी लैंग्वेज। Climate. The climate of Mumbai is neither too hot nor too cold. It is warm and humid in summer. There is a heavy rainfall during June, July and August. यहाँ का जो क्लाइमेट है मुंबई का मॉडरेट क्लाइमेट है, ना ज़्यादा गर्मी पड़ती है ना ज़्यादा ठंड पड़ती है। ह्यूमिडिटी बहुत होती है, उमस जो होता है जिसे कहते हैं, उमस बहुत ज़्यादा यहाँ पड़ती है। और जुलाई अगस्त सितंबर के महीने में यहाँ बारिश भी आपको भारी मात्रा में देखने को मिल सकती है। Important offices. Mumbai city also has head offices of the Reserve Bank of India (RBI), the Bombay Stock Exchange (BSE), the National Stock Exchange of India (NSE), and the corporate powerhouses of many Indian business conglomerates. तो आपका जो बॉम्बे है उसमें काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट ऑफिसेज हैं, जिसमें से कि कुछ इंपॉर्टेंट ऑफिसेज हैं आपके आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, बीएसई यानी कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, अलग अलग बिजनेसेस के ट्रेड सेंटर्स भी यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। तो बॉम्बे जो है वो काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट ऑफिसेज का भी एक लोकेशन है। फेमस बिल्डिंग्स एंड प्लेसेस. The most famous landmark in Mumbai is the Gateway of India. Other interesting places are the amusement park called the SL World, the Tarapurewala Aquarium, the Kamla Nehru Park, the Hanging Gardens, the Jahangir Art Gallery, etc. Other beautiful places along the sea are the Marine Drive, the Chapati, the Nariman Point and the Juhu Beach. तो आपके मुंबई में अलग अलग आपको हिस्टोरिकल प्लेसेस भी देखने को मिलेंगी, जैसे कि आपको देखने मिलेगा ताज होटल के जस्ट सामने गेटवे ऑफ इंडिया है, नरीमन पॉइंट है, जूहू चौपाटी है, मरीन ड्राइव है, उसके अलावा यहाँ पे अम्यूजमेंट पार्क भी है जिसका नाम है एसएल वर्ल्ड। तो अलग अलग टाइप की एक्टिविटीज भी यहाँ पे आपको देखने को मिल सकती हैं। The
arc of shining lights along the marine drive is called the Queen's Necklace. The Elephanta Caves are on an island which is just 10 kilometers away from Mumbai. It has 4 rock-cut temples. तो आपको यहाँ पे एलिफेंटा केव भी देखने को मिलेगा, जहाँ पे आपको समुद्र के द्वारा ले जाया जाता है एक आइलैंड पे, जो कि बहुत ही सुंदर एक केव है, एलिफेंटा केव, जो अलग अलग रॉक्स से बनाया गया है. Festivals and entertainment. Though all the important festivals are celebrated here, Ganesh Chaturthi is the most important festival for the people of Mumbai. It is celebrated with great devotion and rejoice for 10 days. The people here are fond of eating Shrikhand, Bhel Puri, Vada Pav and Pav Bhaji. तो यहाँ पे अलग अलग टाइप के फेस्टिवल्स मनाए जाते हैं, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल इनका होता है गणेश चतुर्थी. बहुत ही हर्ष और उल्लास के साथ इसे मनाते हैं, और यहाँ के लोगों का जो सबसे ज़्यादा खाना पसंद है उसमें आपके आते हैं श्रीखंड, भेल पूरी, वड़ा पाव या फिर पाव भाजी जैसी चीजें. Mumbai is the center of film industry too. Most of the Hindi and the Marathi films and television serials are produced in Mumbai. So it is called Bollywood. Most of the Hindi film actors also live here. ये एक बॉलीवुड सेंटर भी है, यानी कि यहाँ पे फिल्म्स बनाई जाती हैं. जितनी भी आपकी हिंदी फिल्म्स होती हैं वो यहीं बनाई जाती हैं ज़्यादातर, इसीलिए इसको बॉलीवुड भी कहा जाता है. जितने भी फेमस आपके मूवी स्टार्स आपको देखने को मिलेंगे वो आपको ज़्यादातर मुंबई में ही मिलेंगे. In Bombay High, crude oil has been found in the seabed. India's first atomic power plant, known as the Bhabha Atomic Research Center, is situated at Trombay near Mumbai. It carries out research related to peaceful uses of atomic energy. बॉम्बे हाई में आपको सी बेड के पास क्रूड ऑयल भी मिला है, जो हमारी कंट्री के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हो सकता है. साथ ही साथ जो भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर है वो भी ट्रॉम्बे में ही लोकेटेड है, जो कि मुंबई के पास ही है. Industries. Mumbai is a city of industries. It has a large number of cotton textile mills. It also has factories producing chemicals, medicines, edible oils, fertilizers, and electronic goods. These factories provide jobs to a large number of people from all parts of India. Mumbai is the biggest seaport of India. Goods are shipped to other countries from Mumbai. Goods from other countries are also brought here by ships. जो मुंबई है उसको सिटी ऑफ इंडस्ट्रीज भी कहा जाता है. बहुत सारे अलग अलग सी पोर्ट्स हैं यहाँ पे. मेजर सी पोर्ट्स आपको मुंबई में देखने को मिलेंगे, जहाँ से अलग अलग गुड्स यहाँ से बाहर दूसरी कंट्रीज में भेजे जाते हैं, और अलग अलग टाइप के गुड्स दूसरी कंट्रीज से हमारी कंट्री में भी लाए जाते हैं. नाउ आई नो मुंबई इज द कैपिटल ऑफ महाराष्ट्र. इट इज एन इम्पॉर्टेंट सी पोर्ट. इट इज एन इम्पॉर्टेंट सेंटर ऑफ इंडस्ट्रीज, बिजनेस एंड फिल्म्स. द क्लाइमेट हियर इज वार्म एंड ह्यूमिड. गणेश चतुर्थी इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल here. तो इस चैप्टर में स्टूडेंट्स हमने मुंबई के बारे में जाना, जो कि महाराष्ट्र की कैपिटल है. इंपॉर्टेंट ऑफिसेज जैसे कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, यहीं पे आपको देखने को मिलेंगे. जितनी भी मेजर हिंदी फिल्म इंडस्ट्रीज के आर्टिस्ट हैं वो भी आपको यहीं देखने को मिलेंगे. मेजर सेट्स आपको यहीं देखने को मिलेंगे. सी पोर्ट्स, मेजर सी पोर्ट्स जो हैं वो भी आपको यहीं पर देखने को मिलेंगे. यहाँ के लोग मराठी बोलते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट फेस्टिवल इनका है गणेश चतुर्थी. सो स्टूडेंट्स, हियर कम्स द एंड ऑफ दिस चैप्टर. इसकी जितनी भी एक्सरसाइजेज हैं वो आपको खुद से करनी है.